ओ सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम धन वाहेगुरु साहिब जी। काट आव काट डूगर काना एक निर्गुण बैल हमार। रामैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। को वणजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। को वणजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। रहाओ हाँ वणजारो राम को सहज करो बापार। मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार। और वार पार के दानिया लिख ले हो आल पाताल। मोहे जम डंड न लागई तजिले सरब जंजाल। जैसा रंग कसुंभ का तैसा ए संसार। रामैये रंग मजीठ का कह रवदास चमार। मेरे रामैये रंग मजीठ का कह रवदास चमार। यूट्यूब ਅਤੇ फेसबुक ਦੇ माध्यम ਦੇ ਰਾਹੀਂ शब्द की विचार ਨੂੰ ਸਰਵਣ कर रहे गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, भगत रविदास जी का उच्चारण किया यह शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज है। अज दे इस पावन पवित्र शब्द दे विच भगत जी ने एक बड़ा ही प्यारा सिद्धांत दिता है, जिस सिद्धांत को अगर अपना लिया जाए तो जिंदगी च जीवन दे विच सफलता की कुंजी हथ विच लग जाती है। आप इस तरह कह सकते हाँ कि भगत जी ने अज दे इस शब्द दे विच एक ऐसा गुज्जा भेद रखे है। इसनूं कई सिर्फ इसे नज़रिए नाल वेखदे ने कि सिर्फ अध्यात्म की गल हो रही है। गुरबाणी दे इस शब्द की विचार आपां इस नज़रिए नाल समझण दा जतन करांगे कि कले अध्यात्मक की विचार की गल नहीं। इत्थे जिंदगी दे विच किसी भी खिते नूं अगर इंसान अपना लैंदा है, जिंदगी दे विच सफल होने का एक मूल मंत्र दे दिता है भगत जी ने। कमाल दी ये रचना जो भगत साहिबान ने अपने निजी जीवन दे विचों ते अपने आस पास के आले दुआले दे अध्यात्म दे राही ज्ञान दे राही प्रैक्टिकल जीवन दे विचों ये सिद्धांत दिता है, पेश किया है। और इस सिद्धांत को अगां चल के फिर गुरु साहिबान ने प्रचारिया, सिखी रहो रीत ते जीवन का हिस्सा बन गया। जिमें इस शब्द का रहाव वाला बंद है, को वणजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। ते सिख नित अरदास करता है ते अरदास दे विच बोल कहता है, से प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। परमात्मा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे हर सिख रोजाना भावें इंग्लैंड कनैडा अमेरिका किथे भी रहिंदा है भारत दे विच वो अरदास करता है, परमात्मा मैनू ऐसे प्यारियां दे नाल मेल कराई जिहड़े उस परमात्मा दे
ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਸਕਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਰੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਮੱਕੀ, ਖੰਡ, ਸ਼ੱਕਰ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਆਦਿਕ, ਲੂਣ, ਮਿਰਚਾਂ, ਹਲਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਗਲੀ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਾਂਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ, ਉਹ ਮਾਲ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਲੱਦਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਊਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਊਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਊਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ, ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ, ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਰਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਭਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਕਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਛਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੀਜੇ ਦੇ ਪਛੋਤਾਈਏ, ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫੇਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਹੋਛਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਹੁਣ ਹੋਛੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ, ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਡੁੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਡੁੰਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਜਿਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਥਿੰਗ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਟਨੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਖਾਏ ਜਾਂ ਲਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ?
इस तरह ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਉਹਦੇ ਲਈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਕਾ ਅੰਧਲਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, उसने अगर पढ़ाई गलत दिता फॉर्मूला, एक सवाल है मैथमेटिक्स के राही समझिए, और टीचर को आप नहीं पता, उन्हें गलत फॉर्मूला लगाना सिखा दिता बच्चे हुण, वो जो फॉर्मूला ही गलत सिखाया तो जवाब भी गलत आएगा। सो ये उदाहरण के राही समझण दे नूं आपां जतन कर रहे हैं। भगत रविदास जी के शब्द कहते, को वणजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, को वणजारा मिल जाए, आप पूरा होवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ साकत संग न कीजिए दूरों जाइए भाग। कहते कबीर साकत दा संग ना करिए, जिहड़ा मनुख उस सच दी विचार तो टुटिया हुआ है, जिहड़ा असल ज्ञान दे रस्ते तो टुटिया हुआ है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਨਸ਼ਈ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ 2 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਾਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਰਾਜ ਦਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 3 ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵੰਡ ਕੇ 3 ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਏਗਾ। 100-100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ 100 ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਭਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ।
ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜकुमार जिन्हां दी संगत विच रहिंदा, जिहड़ा उहदा आला दुआला है, उन्हां नूं लत है ऐश परस्ती दी। वो नित जुआ खेडदे ने। एक बोलिया कहंदा ते बड़ा सौखा काम है, तू क्यों घबराया होया है? वो कहंदा किवें सौखा काम है, 100 रुपये दे नाल राज महल भर देना, खाला जी दा वाड़ा नहीं, एक महीने दे विच इवें किवें हो सकदा है? वो कहंदा बड़ा सौखा है। कहंदा किवें? कहंदा आपां जुए दे विच दा खेडदे आ ना, रुपया 100 लाने 1000 बन जांदा, 1000 दा 10,000 बन जांदा, 10 दा लख बन जांदा है। राजकुमार तू घबराई ना, इस तो वधिया ते सौखा ते शॉर्टकट तरीका कोई नहीं। इंसान शॉर्टकट बना लैंदा कई बारी जल्दबाजी दे विच। इहदे ते खैर आपां बाद विच विचार कदे करांगे। शॉर्टकट हमेशा ही नुकसान वाले पासे लैके जांदा है। धन भगत रविदास जी ने शब्द विचार दे विच बड़े गुझे भेद रखे ने। वो राजकुमार ने कह दिता कि ठीक है, ये भला है, मैनू भी ये लगती है गल। जुए दे विच गए, 100 रुपया लाया, दा खेडिया, हार गए और नमोशी वाला मुंह लैके और राजमहल दे विच वापस आ गया। दूसरे राजकुमार दे दूसरे राजमहल विच की बीत रहा है, उहदा जिहड़ा आला दुआला दे सलाहकार ने, जिहड़े सज्जन मित्र, उन्हां विचों एक जिन्होंने होर तो कुछ सोच नहीं, कहते तो बड़ा सौखा तरीका एक मैनू आया। उन्हें सलाह दी कि आप रुपये 10-10 देवांगे 10 जणियां ते जितना रियासत दे विच गंद है ना, मल मूत्र है, वो बहुत है। वो एक राजमहल ते कि 10 राजमहल भरे जा सकते हैं। आप लावांगे दिहाड़ी, महीने की तो बड़ी दूर की गल है, 10 दिन च राजमहल भर देंगे। और इस तो इलावा और कोई तरीका ही नहीं है। वो कह लगे कि 100 रुपये दे विच सारा राजमहल भरिया जा सके। उन्होंने गल वधिया लगी, क्योंकि वो आले दुआले दे लोग जिन्हां दे विच रहिंदा सी, ओहो जी उहदी मत सी। उसने लगा दिते 10 मजदूर और सारी रियासत का गंद लिया के राजमहल च भर दिता। हुण 1 महीना बीत जाने तो बाद जिहड़ा तीसरा राजकुमार है, वो आखिरले दिन बैठा है कि भी मैं की करा। 100 रुपया उन्हें बचा के रखा है, हुण मैं की करा। उहदे जिहड़े आले दुआले दे लोग ने, समझदार लोग ने, सियाने लोग ने, उन्होंने सलाह दी कि जिहड़ा आखिरला दिन होवेगा, 99 रुपये अपने पिता के हत्थ ते वापस रख दी तली ते, 1 रुपये दे नाल धूप बत्तियां अगरबत्तियां लैके आवांगे। और उस धूप बत्ती ते अगरबत्तियां दे नाल जदों असी चारे पासे चारे कोनियां दे विच वड्डी मात्रा दे अंदर वो धूप बत्तियां अगरबत्तियां लगा दांगे ते सारा राजमहल खुशबू दे नाल भर जाएगा, खुशबोई दे नाल भर जाएगा और तुहाडे पिता बहुत खुश होणगे। हुण इह उन्हां दी संगत माणदा है, वो उन्हां दे विच रहिंदा है। वो कहंदा फिजिकली चीज़ की गल नहीं हो रही, ये अंदर की गल हो रही है। उहदे सलाहकार कहण लगे राजे ने इतनी वड्डी प्रतियोगिता अपने उत्तराधिकारी लिए रखी है, तो ये कोई मामूली गल तो नहीं होगी। वो तेरे अंदरों कुछ गुण वेखना चाहते होणगे। इस तीसरे राजकुमार की उन्हां दी गल बहुत चंगी लगी, भली लगी, उन्हें उस तरह किया। हुण आसा जी वार की एक पंक्ति मैनूं याद आती, जिथे गुरु नानक पातशाह महाराज कहते ने, जो पावे इस भांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा। कहते जो इस मानते भांडे दे विच पाया है ना, निकलेगा वही। जिवें असी घर दे विच गिलास दे अंदर जे अमृत पाया है तो वापस अमृत निकलेगा, शहद पाया है शहद निकलेगा, जहर पाया जहर निकलेगा, पानी पाया पानी निकलेगा। जो चीज़ भांडे दे विच पाई जाए और वापस कड्ढनी होवे तो फिर निकलेगी तो वही जो दे विच पाई गई होवेगी, दूजी चीज़ तो नहीं निकलन लगी। इसे तरह मन दे भांडे दे अंदर असी अपनी आस पास दे आले दुआले जिहड़े माता पिता, जिहड़े भैन भरा, सज्जन मित्र, जिन्हां लोकां दी संगत करदे हां, उन्हां तो जो गुण अवगुण जो उन्हां दे विच हुंदे ने, जो सोच विचार उन्हां दी हुंदी आ, वो असी इकत्तर करदे हां ते अपने अंदर रख लैंदे हां और फिर उहदे अनुसार कर्म करदे हां और फिर उन्हां कर्मां अनुसार फल मिलदा। हुण वेखो, ये गुरु नानक पातशाह महाराज दी ये पंक्ति, भगत रविदास जी दे शब्द, कोवन जारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे। हुण तीजे राजकुमार ने यह किया है। जिस दिन राजन आया, पहले दे कोल गया, पहले नूं कहंदा हाँ भाई तेन 100 रुपया दिता सी, की भरिया राजमहल अंदर। उन्हें नामोशी नाल सिर चुका लिया। कहंदे की गल हुई है?
कहना मैं तो 100 भी गवा बैठा। कहता 100 भी गवा दिता है? हाँ 100 भी गवा दिता। कीता की तू? कहना मैं पिताजी जूए दे विच खेडिया, भी इस तो सौखा तरीका और किहड़ा हो सकदा सी। वो कहता जे मैं तेनू अपना उत्तराधिकारी बना दिता ते सच ये है कि तू सारा राज भाग जूए दे विच उड़ा देगा, ऐशप्रस्ती च उड़ा देगा। तेरा आला दुआला बहुत गलत है, तेनू तो अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। दूसरे राजमहल दे विच दूसरे राजकुमार कोल जांदा है, जदों ने जाके वेखिया ते मल मूत्र दे नाल भरिया होया सारा। वो कहंदा आ की कीता है? कहंदा राजन महाराजा साहब, पिता साहब, पिताजी इस तो सौखा ढंग ते तरीका किहड़ा हो सकदा सी? मैं सारी रियासत दा गल मत मूत्र 100 रुपए दे नाल होर की चीज खरीदी जा सकदी सी? एडा वड्डा राजमहल किवें भरिया जा सकदा? वो कहता तेरे ते दिमाग दे विच ही गंदगी है, तेरे ते जिहड़ी संगत है वो संगत विच ही गंदगी है, और तू गंद ही भर दिता है। जे तैनू रियासत का मालक बना दिता, तू ते सारी रियासत नूं गंदगी च तब्दील कर देगा। तेरे ते दिमाग विच गंद है। हुण तीसरे राजकुमार कोल गया है ते जदों अंदर पैर रखे वजीर ते राजे दे चेहरे ते एक खुशी आ गई। इन्नी खुशबू चारे पासे राजमहल च भरी है। उहदा रोम रोम खिड़ उठिया, उहदे लू कंडे खड़े हो गए। उन्हें पूछया हाँ पुत्र तू की कीता है? कहना पिताजी आ फड़ो पहला दे 99 रुपये, मैं सिर्फ 1 रुपये दे नाल इन्नियां धूप बत्तियां ले आया और इन्नी खुशबू कर दी है, सारे राजमहल नूं रोशना दिता। वेखो खुशबू दे नाल सारा राजमहल भरिया होया। तुहानूं दिसदा है कि राजमहल दे किसी कोने दे विच खुशबू ना पहुंची होए? राजा बड़ा खुश होया, अखां च अखां पा के वजीर दे वेखदा भी तेरी प्रतियोगिता सफल हो गई। ये है बिल्कुल सही चोण। जे मैं अपना उत्तराधिकारी इनू बना दिता ते एक घट लागत दे विच बहुत घट चीज दे विच भी सारी रियासत नूं खुशबू दे नाल भर देगा। जो पावे इस भांडे विच वस्त, सा निकले क्या कोई करे बेचारा। बड़े प्यारे बोल गुरु नानक पातशाह महाराज ने कहे। इसलिए इस शब्द की विचार दे राही ये जिहड़ी साखी आपां समझी है, इहदे राही समझण दा जतन करिए। भगत रविदास क्यों कह रहे ने को बनजारू राम को मेरा टांडा लादिया जाए रे, कोई व्यापारी मिल जाए। किसी भी खिते दे विच असीं जाना, अगर उस्ताद चंगा धारिया होवेगा, म्यूजिक सीखना है उस्ताद चंगा धारिया होवेगा, गाना सीखना है उस्ताद चंगा धारिया होगा, किसी मोटर का मकैनिक बनना है उस्ताद चंगा धारिया होगा। जिस भी फील्ड दे विच जाना है, इंजीनियरिंग करनी है, जज बनना है, वकील बनना है, जो उस्ताद चंगा धारिया होगा। अध्यात्म की दुनिया दे विच जाना है, जे कच्चियां पिल्लियां दे पिछे जाना है तो फिर जीवन नरक बन जाएगा, गंदगी नाल भर जाएगा, जुए दे विच हार जाएगा। पर सच ये है जे चंगा उस्ताद कीता होगा, चंगा परमात्मा की बंदगी दे नाल जुड़न वाला शख्स कीता होगा, तो सच ये है कि किते भी तेनू जीवन दे विच मार नहीं खानी पड़ेगी। सो भगत रविदास जी ने अपने प्रैक्टिकल जीवन दे विचों एक अध्यात्म के ज्ञान नूं लभे एक ऐसा सिद्धांत दिता है प्यारिओ, जिहड़ा ये सिद्धांत अपना लवेगा उन्होंने जिंदगी जिउण दा सफल तरीका मिल जाएगा। कोछा शाह ना कीचे फिर पछताइए, कोछा शाह ना करे, गुरु अन्ना ना करे। कबीर जेह मार्ग पंडित गए पाछे भई बहीर, कौकट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। वो रास्ता औखा हो सकता है, बिखम हो सकता है, पर सच करके जानी वो सफलता दे राह ते लेके जाएगा। सो फिर इस शब्द की व्याख्या करते हुए पहले बंद विच कहते हैं, घट आव घट डूगर कणा, एक निर्गुण बैल हमार। जिंदगी का जिहड़ा रस्ता है, जीवन का जिहड़ा रस्ता है, चाहे कोई वड्डे तो वड्डा राजा महाराजा इत्थों होके गया, कोई उच्चा पीर फकीर दुनिया दे, कोई आम इंसान मध्यम वर्गी, निम्न वर्गी, भावें उच्च वर्गी भाव जिन्होंने असीं मिडल क्लास, अपर क्लास ते लोअर क्लास कहने, किसी भी जीवन दे विच किथे भी इंसान का जन्म होया मायने नहीं रखता। इत्थे कबाड़ी का काम करने वाला, कबाड़ का काम करने वाला बिल गेट्स दुनिया का अव्वल व्यापारी बन जाता है, मिलेनियर बन जाता है। तुसीं किहड़े हल, अब्राहम लिंकन वर्गा शख्स दिने मजदूरी करके रात नूं स्ट्रीट लाइट दे थल्ले बैठ के पढ़ाई करके अमेरिका वर्गे मुल्क का राष्ट्रपति बन जाता है।
सो ये मायने नहीं रखता तुसी लोअर क्लास विचों, तुसी मिडल क्लास विचों, तुसी अपर क्लास दे विचों, तुहाडा जन्म किहड़े खानदान विच होया, किहड़े घर विच होया। सच्चाई ये है कि सिद्धांत अपना लिया अगर तो तुसी उस्ताद चंगा कीता है, जिन्हें कोल आप समूचा उस फील्ड का ज्ञान है, तो तुसी उस फील्ड दे विच अव्वल ते जाओगे, अगां जाओगे। अध्यात्म दे विच, जीवन दे विच, जिंदगी दे विच तुहाडे कोल एक ऐसा ज्ञान चाहिदा हुंदा जिहड़ा सच दे रस्ते तुहानूं ले जा सके। ते जे अन्ना गुरु करोगे, क्योंकि घट आव घट डूगर कणा, मुश्किलां आनियां ने, औंकड़ा आनियां ने, घट आव घट डूगर कणा। घट आव घट दा भाव है किथे टोया टिब्बियां वाला राह है, किथे पहाड़ियां भी ने, किथे पर्वत भी ने, किथे समंदर भी ने। समंदरां नूं पार लंघ के जाना, पर्वतां दे शिखरां नूं चीर के जाना। जिन्हां दे हौसले बुलंद हुंदे ने वो पर्वतां दे शिखरां नूं छू लिया करदे ने। एक बड़ी प्यारी उदाहरण गुरबाणी दे विच भी आंदी है, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। कहते इस महिमा है सत दी संगत दी, सच दी संगत दी। जे तुसी चंगे विचारां वाले लोकां दे नाल रहिंदे हो, जे तुसी ऐसे से प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेत आवे, जे इहो जे प्यारियां दी संगत करदे हो ते सच करके जाने महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। पिंगल पर्वत पार परे, पिंगला कहते पिंगला मैं पहाड़ चढ़दा वेखिया, घट आव घट डूगर कणा, किथे टोए टिब्बे, किथे पर्वत, किथे समंदर। इहो जिहा रस्ता हर एक दे जीवन दे विच आंदा है। कदे डाउनफॉल आ जाता है व्यापार दे विच, बहुत नीचे चला जाता है, कदे बहुत फॉल आता, बहुत उपर चला जाता। हर एक का जीवन कदे स्ट्रेट नहीं गया, इको जिहा रेशो कदे डाउन जाती, कदे अप्स एंड डाउनस चलते रहते। घट आव घट डूगर कना, एक निर्गुण बैल हमार। फिर अगे बेनती की रमैये सिंह बेनती मेरी पूंजी राख मरा। ये जी स्वासां की पूंजी ना, जो जीवन मिले है तो जा रहे दिन प्रति दिन घटता जा रहे, दिन पैर हर घड़ी ये घटता जा रहे हैं। और ये जीवन की पूंजी ना किथे गवाच जाए, किथे होछे शाह दे मगर ना लग जाई, किथे माड़ी संगत दे मगर ना लग जाए। ते फिर दूजे बंद विच व्याख्या करदे, हौं बन जारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन लादिया बिखला दी संसार। हुणे अगली गल आ जाती है, हौं बन जारो राम को सहज करो व्यापार। कई बारी व्यापार करने वाला, किसी फील्ड दे विच रहने वाला उस्ताद कई इस तरह के भी मिल जाते हैं, आला दुआला भी इस तरह का मिल जाता है, भाई गलत काम भी कर लै, कोई गल नहीं तू भर लै। पर भगत जी कहते जीवन ते जिंदगी दे सफल नूं ईमानदारी दे नाल, सच्चाई दे नाल जिउंदा होया जाएगा, क्योंकि ये कर्मा संदड़ा खेत है। हो सकता है कुछ समय दे लई तेरा झूठ, तेरी कीती हुई ठगी ठोरी, तू सोचता है भी किसी दियां अखां विच धूड़ पाई है, सच करके जानी किसी दियां अखां विच धूड़ नहीं पाई, तू अपनी अखां विच धूड़ पाई है, क्योंकि एक दिन वापस घूम के तेरे वाल आने वाली है। ये कर्मा एक बड़ा वड्डा सिद्धांत है। इसकी फिर किते विचार आपां जरूर सांझी करांगे। जे इस विचार नूं अज दे रहाओ वाले बंद दे विचार दे विच लाया ते वो जिहड़ा सिद्धांत सामने रखे वो हथों निकल जाएगा। सो गुरमुख प्यारिओ, हौं बन जारो राम को सहज करूं व्यापार, मैं राम नाम तन लादिया बिख लादी संसार। मैं ते सच दा व्यापारी हाँ, मैं सच दा व्यापार करदा हाँ। व्यापार दे विच भी झूठी ठगी फरेबी, ये फरेब मैं नहीं लैके आंदा। लोकां जहर लद्दिया होया, जिन्हां धन बहुत इकट्ठा कर लिया, अपनी फील्ड दे विच बड़े नाम ते शोहरत कमा लई होवेगी, तख्त ते ताज मान लए होणगे, पर गलत तरीके दे नाल कीते हुए ये संचिया जहर उन्हां ने लद्दिया होया इकट्ठा कीता, एकत्र कीता। पर मैं ते राम दे नाम दा धन लद्दिया, मेरे कोल वो अमृत है। फिर अगले पासे लिखते हैं कि सुनिया भी उहदी कचहरी विच लेखा जोखा हुंदा, जदों मैं कुछ गलत कीता ही नहीं, मैं चंगे प्यारियां दी संगत की है, चंगा सुभाव अख्तियार कीता है, चंगे कर्मानुसार कर रहा वां, ते फिर मैं चैलेंज करदा उरवार पार के दाने, इस जहान ते उस जहान दोनों जहानां दे मालिक उरवार पार के दानियां लिख ले हो आल पता, तू जो लिखना लेखे जोखे च लिख लै। मोहे जम डंड न लग गई तजीले सर्व जंजाल, मैनू मोह दे जमा दियां मारा नहीं खानियां पैणगियां, काम रो लो मोह हंकार मेरे ते हावी नहीं होगा, इन्हां जमा दी मार मैनू नहीं खानी पएगी।
मोहे जम डंड न लागे तजीले सर्व जंजाल, क्योंकि मैं सारे जंजाल जिहड़ा सुचज्जा ज्ञान है, जिहड़ा चंगा उस्ताद है, वो इस तरह की सिक्ख्या देगा कि उस फील्ड का ज्ञान भी चंगा देगा, वो प्यारे उस जीवन की जिंदगी दे विच आउण वाली भी चंगी भावना देणगे ते अध्यात्म दे विच भी तैनूं कदे किसी गलत रस्ते ते ना जाए, इस चीज़ की भी सिक्ख्या देणगे। सो आखिर दे बंद विच फिर कह दिता, जैसा रंग कसुंभ का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कह रविदास समार। जे संसार सिर्फ धन दौलत इकत्र करके, ये तो जिवें कसुंभ का रंग हुंदा है ना, पानी दे धोतियां थिर ना रहोई, ये रहिंदा नहीं। ते जिहड़ा राम दे नाम का रंग चढ़िया हुंदा है, जिहड़ा सच्चे ज्ञान का रंग हुंदा है, जिहड़ी चंगी मत का रंग हुंदा है, ये ऐसा रंग चढ़दा है, ऐसा रंग चढ़दा है, मेरे रमैये रंग मजीठ का कह रविदास। मजीठ वर्गा पक्का रंग हुंदा है। हुण आखिर दे विच एक गल कह के समाप्ति कर देवां। भगत रविदास ने उदाहरण दित्तियां फिर अपनी बाणी दे विच, नामा कहे तिलोचना मुक्ते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन राम। नामदेव त्रिलोचन नूं कह रहे हैं, कबीर दे बारे, कबीर जी का यह सलोक है, उदाहरण वरत रहे हैं, भावें इन्हां दी संगत करते, इन्हां दे बारे जानते, इन्हां दा समुच्चा ज्ञान आप इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। रमैये का यह रंग जिहड़ा चढ़िया होया, इन्हां भगत साहिबानां नूं संसार तो गया कितना समा हो गया, पर अज भी इन्हां दे दित्ते गुरबाणी दे विच बोल, इन्हां दे दित्ते सिद्धांत जिंदगी जीउण दा ढंग सिखाते हैं। तो यह है मजीठ का रंग। कई सदियां बाद भी उन्हां ते जो रंग चढ़िया सी सच का, सच्चाई का, अज भी असीं याद करते हैं। सो गुरमुख प्यारिओ, इसे तरह अपनी अपनी फील्ड दे विच जिहड़े उस ज्ञान दे राही, सुचज्जे ज्ञान दे राही जीवन दे विच कुछ करके जाते हैं, उन्हां दा नाम सदियां बद्धी तक रहेगा है। सो गुरमुख प्यारिओ, साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का परम सिद्धांत सी, मैं जतन किया है कि अपने विचारां दे राही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे इस पावन पवित्र शब्द विचों एक ऐसा नज़रिया आप जी के सामने रख सका कि जिंदगी जीउण का ढंग सानू भी भगत साहिबान वर्गा आ सके। गुरबाणी आगाध बोध है, बड़े 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 विद्वान सज्जन इत्थे बैठे हैं, जितनी को जिन्हों समझ आती है वो उतनी को व्याख्या कर रहे हैं और मालक उन्होंने तो करा रहे हैं। साहिब सच्चे पातशाह की कला वरती होगी, आप उन्हें विचार करा ली है। सो इतनिया विचार करदे खिमा दा जाचका गुरफतेह दे नाल सांझ पाओ, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।